अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में महकमा सकाफ़त की जानिब से लिंकन कॉर्नर का इफ्तिताह किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी अमेरिकन सफ़ीर थे। इस मौके पर एक नुमाइश का भी इफ्तिताह हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया और अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो प्रोडक्ट बनाई हैं वो नुमाइश के लिए पेश की, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अमेरिकन सफ़ीर ने गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टॉल का दौरा किया और तलबा व तलबात से मुख्तलिफ़ सवालात किए और उनकी हौसला अफजाई की। उनके हर अच्छे काम को सराहा। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप लोग जिस तरह वीडियो देखते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया और आइंदा भी इस तरह देखते रहें। अभी आपको इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिकन सफ़ीर ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की और वज़ीर तालीम व कल्चर सैयद सरदार शाह ने क्या कहा। ये एक बहुत अच्छी और दिलचस्प तकरीब थी, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इसका मज़ीद हवाल। Wonderful, really wonderful to be here at this beautiful Lincoln Corner space here in Karachi. Mr. Panjwani, thank you for the kind introduction, and thank you for all your work as our Lincoln Center coordinator. I want to thank the Minister of Culture and Education for being here today with me to inaugurate the Startup Lab. And I'd also like to thank the Culture Department, the government of Sindh, the Liaquat Memorial Library, and the Pakistan American Culture Center, Pakistan American Culture Center, for partnering with us in this project. Your support in this endeavor, all of your support in this endeavor, is vital to establishing this new hub for entrepreneurship inside Lincoln Corner, Karachi. Lincoln Corner, Karachi, I've learned is one of the most active Lincoln Corners in Pakistan. Out of the 18, I believe, we have across Pakistan. And we expect this startup lab is going to make it even more popular and busier, attracting new audience and supporting the needs of the people of Karachi. Through a variety of entrepreneurship programs, thousands of Pakistani students in Karachi generate startup ideas every year. However, they often run into obstacles and their ideas don't take off because of high overhead costs for things like photography and marketing design, printing, and the like, prototyping. The startup lab at this Lincoln Corner is a one-of-a-kind space here where any aspiring entrepreneur with an idea for a startup can come and turn their idea into reality using the latest technology and equipment for free. I know many students from all over Pakistan come to Karachi to pursue better education and economic opportunities, and they come to the Liaquat Memorial Library because of its fantastic resources. With Startup Lab here, we're bringing the possibility of economic prosperity to their doorstep. The Startup Lab at Lincoln Corner, Karachi will be a space to foster creativity and entrepreneurship, and it will connect Pakistanis and Americans through technology and educational programs to promote economic growth and development. Startup Lab can become a place where people can explore ideas, learn how to create and market them, and ultimately gain the skills and knowledge to reach their full potential. This year marks the 75th anniversary of relations between the United States and Pakistan, and the people-to-people ties between our two countries are really the greatest strength of that relationship. The inauguration of this new startup lab will continue to strengthen those ties, and the U.S. Consulate General in Karachi and the U.S. Embassy in Islamabad are very proud to partner with the government of Pakistan to ensure young Pakistanis are prepared to face 21st century challenges. I'd like to make one more note, I don't have in these remarks, which is that while we're really proud to be able to present some of the infrastructure for this place, some of the financing and some of the ideas, the heart of it
is all these volunteers, many of whom are here and out there, who come here, volunteer their time, they're local people, and help these young people to make their dreams reality. And that's really the heart of this enterprise, is all those volunteers out there. So go talk to them too. Thank you so much, Minister, Pakistani American Cultural Center, Lincoln Corner Coordinator, all the volunteers and the students for your support of this space. Thank you very much. And I know we've been partnered not only in Lincoln's Corner in the libraries, but we've been working closely in the field of education too. And I myself and Mark Stroh, we inaugurated a wonderful school there in Karachi, funded by the people of United States of America. And this is a wonderful space. Even I wish if Blome could come and spare some time to visit all those schools there in the province, and you will be very happy to see all those things, which basically from your side and your people you have provided us. So I definitely won't take much time, and this is definitely a wonderful rainy weather outside in Karachi, and I wish we could reach safely to our destinations after this event. So not only this, but I think in Heritage Department, Ambassadors Fund was provided to the Culture Department in Makli, and we preserved our wonderful monuments there with the support of United States of America. And definitely with this high hope that in future our relationship will grow, and we will work closely for the benefit of the people of Pakistan and especially the people of Sindh. So I thank you all. Thank you very much for visiting this space. चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त चाहिए दुनिया में, हमें इस फेज से निकलना है। और वो जो खान साहब वाला बयानिया है वो दम तोड़ चुका है अब, क्योंकि हम आइसोलेट करके पाकिस्तान को, सीपेक को भी खान साहब ने बर्बाद किया, अमेरिका के साथ भी तल्कात ख़राब किए, और रशिया के पास गए। उस वक्त जब यूक्रेन की वार चल रही थी तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर उनके हवाले कर दिया, और इंडिया से फंडिंग लेता रहा। और अब तो वो चीज़ें सारी सामने आ गई हैं। मैं क्या कहूँगा कि उस हवाले से क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है, मगर हमें ज़्यादा इस फेज़ से निकलने के लिए, क्योंकि अवाम का झगड़ा नहीं है वहाँ के, यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम का कोई यूएसए के लोगों के साथ झगड़ा नहीं है। हमारे लोग तो सबसे ज़्यादा वहाँ सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो हमें डिप्लोमेसी के हवाले से दुनिया में दोस्त बनाने हैं। और आज एम्बेसडर का और काउंसिल जनरल का यहाँ पे इस स्पेस के लिए आना, मैं समझता हूँ ये पीपल टू पीपल और सोसाइटी टू सोसाइटी जो कनेक्शन है, इसको मज़ीद मुस्तहकम करेगा, और इसको हम खुशाइंद करते हैं और इसको वेलकम करते हैं। लाड़काना में मुख्तलिफ जगहों पे जो 5 जो लिंकन्स कॉर्नर इस्टेब्लिश हुए, उससे ये है कि बच्चों में एक रीडिंग की हैबिट को अच्छे इन्वायरमेंट में उनको प्रमोट किया जाए। उसके साथ दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे भी लाइब्रेरीज़ होती हैं तो वहाँ पे ये स्टार्टअप लैब्स का एक कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जाए कि बच्चे अपने अपने वो जाके कारोबार कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान में तो यहीं पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, सिंध से ये स्टार्ट हुआ है। ग़ालिबन पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में मैंने नहीं अभी तक देखा, मैंने गूगल भी किया था कि मैंने कहीं स्टार्टअप लैब स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो दुनिया में मॉडल आते जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है कि वो वाकई वहाँ से मॉडल पिक करें। तो ये फर्स्ट स्पेस है, और इस हवाले से आगे भी दूसरी लाइब्रेरीज़ में भी हम इनको ले जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर ले जाएंगे। जहाँ तक आपका यूनाइटेड यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं अभी। प्राइवेट पार्टनरशिप ही सक्सेसफुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही सक्सेसफुल मॉडल है। खाली हुकूमतें, गवर्नमेंट जो है वो इदारे नहीं चला सकती कि जब तक प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आएगा, वो साथ खड़ा नहीं होगा। इसको तो वेलकम करना चाहिए और इसको गवर्नमेंट की नाकामी नहीं तस्लीम करना है। इसको आप नाम कहें, इसको आप कहें कि गवर्नमेंट एक स्टेप आगे जाके और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने शुरू की है। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस जो प्राइवेट ईएमओज़ को दिए हैं, उसका मकसद ये है कि अब देखिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जो है 49,000 स्कूल्स ऑलरेडी चला रही है।
और वहाँ पे भी हम वसाइल पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर गिरो हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के पास पूरी दुनिया से एक्सपर्टीज लाते हैं, वो उनके पास मौजूद है। तो हम ना अपना फेल्योर इसको मानते हैं। मैं कहता हूँ कि ये लोगों के फ़ायदे के लिए एक कदम हम आगे गए हैं। अब तक आपने कौन सा कल्चरल स्पेस की बात की? कल्चरल का आर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट का है। आर्ट्स काउंसिल आप क्या समझते हो कि आर्ट्स काउंसिल कोई प्राइवेट बॉडी है क्या? उसका प्रेसिडेंट जो है आर्ट्स काउंसिल का जो सब पैटर्न है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ है, और वो गवर्नमेंट की आर्ट्स काउंसिल बनी हुई है, उनको फंड्स गवर्नमेंट देती है। तो वो इसलिए दिया गया है कि न्यू कराची में वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो, और हमारा काम है फैसिलिटीज़ बना के हम लोगों को दें। गवर्नमेंट का काम थोड़ी है कि होटलों भी हम चलाएं, रेस्टोरेंट्स भी हम चलाएं, और सारा काम गवर्नमेंट बैठ के करेगी कि हम स्पेस बना के आपको देंगे, आप चलाएं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।